Alrighty guys, so the final session of biology for SS, UHSC, EE and AU CET. Again, previous year questions include kora hoise sub segmentor pora and high yield topics gitao. Aru tumar exam at kenega dhoroner question ahe hekhiniye mur focus asil. Etu last session hai session 5 hoy. YouTube at session 1 to already available ase sabo para. Session 2, 3, 4 egita ami amar dutai course live hoy ase. এটা তো এসএস ইউএইচএস সিডব্লিউ তোমার বিএসসি নার্সিং বিপিটি বি ফার্ম ডি ফার্ম বিএসসি মেডিকেল টেকনোলজি এন্ড আদার কোর্সেসৰ কাৰণে এটা সিঙ্গল এক্সাম এন্ড AU CET which also gives you admission to veterinary fishery agriculture and all those. So both these courses are live on the White Code Achievers app. Google Play Store ত গৈ পেলে এটো ডাউনলোড কৰি লব পাৰা এন্ড তাত সেশন 2 3 4 সব আছে সিরিয়ালি আছে যিহেতু এটো লাষ্ট সেশন হয় তো কোয়েশ্চন নম্বৰ 150 পৰা মই কন্টিনিউ কৰিব লাগিব কোয়েশ্চন নম্বৰ 150 পৰা মই 51 ইনফ্যাক্ট 50 লগে মই অলৰেডি কৰি থৈছো ঠিক আছে তো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি টাইম লেটস স্টার্ট দা সেশন মই এবাৰ ক্যামেৰাটো চেক কৰি ল সব ঠিকে আছে ইয়েস সব ঠিকে আছে চলো লেটস স্টার্ট Question number 151. Which enzymes are commonly known as molecular scissors? Jetye katakoti kotha kobo scissor mane scissor jaga knife buliyo jodi koy molecular knife you go with restriction endonuclease moi koisilu ligase chipkane wala hai aur endonuclease काटने वाला है DNA polymerase तो main enzyme है DNA dependent DNA polymerase june add koribo notun chain tuk aru helicase june hydrogen bond tuk break kore right and helix to khule next plasmids used in genetical engineering are so bacteria jodi tumi sabo jua main genetic material to ami nucleoid boli kau aru extra chromosome sob bacteria thakibo boli kotha nai it infers extra property like fertility gene thakibo pare nitrogen fixation or gene thakibo pare ebla bostu plasmid thake ba antibiotic resistant gene so these are basically extra chromosomal circular DNA yes सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं मेन जीनोमिक डीएनए को तो मैंने बोला ये न्यूक्लियोइड बोलते हैं या जीनोपोड बोल सकते हो द एंजाइम टैक पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम सो ए टैक होते आंसर আছে এটো क्वेश्चन আহিলে ভুল হ'ব না লাগে टी स्टैंड फॉर थर्मस एंड AQ स्टैंड फॉर एक्वाटिकस तो ऑप्शन नंबर बी हो गल थर्मस एक्वाटिकस राइट आंसर तो डायरेक्टली गिवन है This is very important. It's a thermostable bacteria, right? You can use it because high temperature withstand कर सकता है ये वाला जो टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है क्योंकि जिस बैक्टीरिया से मिलता है वो बैक्टीरिया खुद हॉट स्प्रिंग वगैरह में रहता है जहाँ टेम्परेचर 70 80 90 डिग्री के आसपास होता है बहुत हाई टेम्परेचर होता है ठीक है चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं During gel electrophoresis, DNA fragments move towards so DNA is negatively charged because of the presence of phosphate, right? So negative will move towards anode. Simple chemistry है भाई. Negative कहाँ move करेगा? Anode के तरफ move करेगा. DNA fragments खुद negative charge है तो positive anode की तरफ move करेगा. Next, which enzyme is used to join to DNA molecule? जितने joining और कथा आई जाए ligase है जब. ठीक है सर? Joining और कथा कैसे ना भाई? जॉइनिंग बोलते ही डीएनए लाइगेज कौन सा बॉन्ड बनाएगा पता है क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ठीक है सर साइड दीदी गए से ज्यादा तुम्हारे क्वेश्चन बिलक ভালকে দেখা পোৱা नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ व्हिच बैक्टीरियम इज widely used as natural genetic engineering in plants বুলি কোৱাৰ লগে লগে our answer will be agrobacterium tumefaciens এটো ইউজ কৰে বেসিক্যালি ইয়াৰ যোনটো প্লাজমিড টিআই প্লাজমিড আছে it infects the plant तो उस जगह को बस एक तरीके से कोई प्रोसेस करके बस उस जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जो जीन है उसको साइलेंट कर दो और वहां पे कुछ भी लगा दो और प्लांट के अंदर डाल दो तुम्हारा काम हो जाएगा ठीक है टीआई प्लाज्मिड इज यूज्ड बेसिकली टू ट्रांसफर द जीन्स इनटू द होस्ट प्लांट्स राइट द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज इंसुलिन প্ৰথমবাৰৰ বাবে খুদিছে ইনসুলিন টু বনোৱা কোম্পানীৰ নাম হল এলি লিলি 1983 बनाइছে ठीक है एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है ठीक है उसने पहली बार ह्यूमन इंसुलिन को बनाया था ह्यूमुलिन नाम दिया था 1983 में ठीक है नेक्स्ट
The BT in BT cotton, BT is basically the bacteria Bacillus thuringiensis, এটা soil bacteria হয়, ঠিক আছে। মই কৈছিলো এটো কথা লাস্ট সেশনত, যোনে এপত আছে ইয়াতে গমে পায়, মই ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিছিলো। গোল্ডেন রাইস ইজ জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্রপ এনহ্যান্স উইথ গোল্ডেন রাইস টু কি থাকে ভিটামিন এ, ঠিক আছে। ভিটামিন এ এনরিচ রাইস হয় গোল্ডেন রাইস টু। বেসিক্যালি রাইসৰ পৰা তো কাৰ্বহাইড্ৰেট সোর্স পাইও আছে, আৰু ভিটামিন এ বহুত মানুহে ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰিত এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে সোর্সেস বিলাক স্পেসিফিকলি, তো এটো কাৰণে রাইসতে ভিটামিন এ দি দিছে। এটো জেনেটিক বায়োটেকনোলজিৰ এটা এপ্লিকেশন হয়, ठीक है। अगर पूछता है कौन सा जीन है इसके पास, इसमें कौन सा जीन डाला है, बीटा कैरोटीन बनाने वाला जो प्रीकर्सर है, बीटा कैरोटीन जो होता है उसी से ये विटामिन ए बनता है, प्रीकर्सर है। नेक्स्ट जाओ, नेक्स्ट 160। ओके, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old girl suffering from কোনটো হ'ব, কালার ব্লাইন্ডনেস না ADA ডেফিসিয়েন্সি, ঠিক আছে। স্কিড এই টপিকটো চাবা ভালকে দিয়া আছে, ঠিক আছে। এডিনোসিন ডিএমিনেজ ডেফিসিয়েন্সি। नेक्स्ट 161, आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज्ड टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। वो कैसे काम करता है, तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस करेगा। कहाँ गया ये रस, साइलेंसिंग द स्पेसिफिक एमआरएनए, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। बेसिकली क्या करता है, जो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है ना, उस ट्रांसलेशन को रोक देता है। नेक्स्ट गुड। एलाइजा इज अ डायग्नोस्टिक टूल। मैं लास्ट क्लास में কৈছিলো एड्स वगैरह में एलाइजा इज द टेस्ट is a diagnosis based on the principle of एलाइजा की है। एलाइजा फुल फॉर्म तो जाना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन देखा जाता है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी उसका इंटरेक्शन, जो एंटीजन देखो ये रेडीमेड एंटीबॉडीज मार्केट में भी आजकल अवेलेबल है, वो लेके आएगा तो तुम कलरेशन से आराम से देख ही पाओगे। ये तो हायर क्लासेस में तुम लोग पढ़ोगे अगर मेडिकल फील्ड में रहते हो तो। Which transgenic animal is most widely used in chemical safety and medical? सबतके बेसी आमी माइस यूज करो, ठीक है। माइस निगोनी তুমি দেখি যাও চাগে মুভিজ বিলাকত এবিলাক নিগনি সিগনি লৈ এক্সপেৰিমেন্ট কৰে, सबतके বেছি নিগনি ইউজ হয়। বাকি কিটাও ইউজ হয়, কিন্তু এনেকা নহয় যে পিগ ইজ নট এন এক্সপেরিমেন্টাল মডেল, मंकी मे बी चिंपैंजी, बट माइस इज मोस्ट कॉमन। 164 क्या बोलता है, which Indian body makes decisions regarding the validity of genetic GM research, ठीक है, and its study? ICMR, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी तो होगा। CSIR, ICMR रिसर्च बॉडीज है, IARI तो चलो अलग हो गया पूरा का पूरा। 165 बोलता है द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री, एटू बायो पायरेसी বুলি কয়, চুৰি, ঠিক আছে। আমাৰ ইন্ডিয়ান ফাৰ্মাৰে টাৰ্মাৰিকক বহুত আগৰ পৰা ইউজ কৰি আহিছে, আমাৰ ইন্ডিয়ান शेफ बुरे बिरियानी बहुत बছৰৰ পৰা বনাই আহিছে। তো এইবিলাক বস্তু যদি কোনোবা মাল্টিনেশনাল কোম্পানীয়ে যদি এইবোৰ বস্তু লৈ পেলাই কয় कि भाई अभी अगर तुमको टर्मरिक बेचना है, हल्दी बेचना है तो हमको पैसा देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना बात को। तो ये चोरी है एक तरीके से, बायो पायरेसी बोलेंगे इसको, बायो पायरेसी, ठीक है। नीम और बासमती राइस में बहुत कॉमनली किया गया है, तुम्हें पता होना चाहिए। 166 वाले आहू, अच्छा इकोलॉजी पालो गए दे। Organisms that can tolerate and thrive in a wide range of temperature, बहुत आसान है, बहुत आसान है। वाइड रेंज बोलने से तुम बोलोगे यूरी, स्टेनो मतलब नैरो, ठीक है। मीजो पॉइकिलो ये सब नहीं चाहिए। यूरी थर्मल मतलब जैसे हमारे मैमल्स है बोल ना, आमी ठंडातो থাকিব পাৰো, গৰমতো থাকিব পাৰো। नेक्स्ट बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर, बेंथिक माने एकदम पूरा समुद्र का नीचे, ठीक है। ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर नहीं, सस्पेंडेड इन द वाटर कॉलम नहीं, एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज, एटू होगा बेंथिक माने। बेंथिक का मतलब ही होता है जो एकदम पूरा सम नीचे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
2 बार दबा दे रहा हूं मैं गलती से, ठीक है। 168, एन इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड, एक बेनिफिट हो रहा है, while the other is neither benefited nor harmed, 0, ये टू +0 रिलेशनशिप टू होल कॉमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों बेनिफिट होता है, एमेंसलिज्म में एक का कुछ नहीं है, दूसरे का लॉस है एक तरीके से। पैरासाइटिज्म में एक का बेनिफिट है, एक का लॉस है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली +0 रिलेशनशिप, सो कॉमेंसलिज्म विल बी द आंसर, commensalism will be the answer. Next बोल रहा है lichens are well known combination of algae and a fungus where both benefit, ठीक है। इस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं भाई, इस इंटरेक्शन को बोलेंगे म्यूचुअलिज्म, दोनों का बेनिफिट हो रहा है, मैंने बोला ही है। यहाँ एक का बेनिफिट एक को कुछ नहीं, यहाँ पे पैरासाइटिज्म में एक का बेनिफिट एक का लॉस है, क्योंकि एक भाई न्यूट्रिशन लेगा, दूसरा का तो एक तरीके से लॉस ही हो गया। कॉम्पिटिशन में दोनों का लॉस है, ठीक है, दोनों का ही लॉस है कॉम्पिटिशन में, ओके। 170, the maximum number of individuals of a population that a given environment can sustain, A to direct definition है कैरियर कैपेसिटी, ठीक है, ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन दैट एक एनवायरनमेंट में कितना मैक्सिमम सस्टेन कर सकता है, बेसिकली इट इज नोन एज कैरियर कैपेसिटी। सिंबॉलिकली के एट अ ग्राफ আছে এনসিআরটি সাইলাবা logistic growth modeler, hetu Sailaba. Next question, the S shape growth curve is indicator of S shape, এটা मैं बोलूँ ना logistic, S एने का जाए logistic, ठीक है सर, logistic growth बोली का है। Next, according to Allen's rule mammals from colder climate generally have, ये डायरेक्ट बोला है कि भाई सरफेस मतलब एक तरीके से ज्यादा हीट लॉस नहीं करने के लिए बेसिकली शॉर्टर एयर्स और शॉर्टर लिम्स होगा, ठीक है, हाँ, ताकि हीट लॉस मिनिमल हो। शॉर्टर एयर्स एंड शॉर्टर लिम्स, ओके। नेक्स्ट, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, ये तो डायरेक्ट पूछा है, गॉस क्या बोला था, ठीक है, गॉस ने क्या बोला, चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन सेफली कोएग्जिस्ट, नहीं सेफली नहीं भाई, सेफली कोएग्जिस्ट बोल दिया, गलत हो गया। कंपटीशन प्रोमोट्स बायोडाइवर्सिटी, ये स्टेटमेंट नहीं था। टू स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्स कैन, ये बात है, गॉस ने ये बोला था। ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का है भाई, अगर सेम रिसोर्स के लिए फाइट कर रहा है तो एक ही जीत पाएगा भाई। अभी मैं एक ही जगह बर्गर पड़ा हुआ है, तुम और मैं खाना चाहते हैं, ठीक है, कोई एक ही बर्गर को खा पाएगा, तो तुम और मैं, मेरे में जो ताकतवर है वही खा पाएगा, या जो सियाना है। प्रीडेटर्स एक्सक्लूडेड, नहीं सब छोड़ो, गॉस का पूछा है ना। 174, द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अलग अलग लेवल्स पे रखने को बोलते हैं स्ट्रेटा, स्ट्रेटिफिकेशन। सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो ऐसा क्वेश्चन इस बार नीट में भी आया था, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, क्या बोलते हैं न्यू ऑर्गेनिक मैटर को बनने को, कंज्यूमर्स बोलते ही आंसर याद रखना सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है। प्राइमरी वाला तो प्रोड्यूसर के लेवल पे होता है, जैसे ही कंज्यूमर बोल दिया सेकेंडरी होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थवर्म इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स जो फोटोस डायरेक्ट सनलाइट को ट्रैप करते हैं, वो तो नहीं है। सेकेंडरी मतलब जो प्लांट्स को खाता है, जैसे हार्बीवोरस एनिमल्स हो गया। तीसरा है डेट्राइटिवोर, हाँ ये ठीक है, डेट्राइटिवोरस है ऑर्गेनिज्म का जो फूड चेन है उसमें अर्थवर्म आता है, ठीक है, ओके। कार्निवोर तो नहीं भाई, कार्निवोर मतलब जो शिकार करता है। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ये क्या बकवास सवाल है, हाँ, नाम ही है 10% लॉ, तो कितना होगा, 10% ही होगा, ठीक है। ऐसा सवाल भी आता है, तुम सोच सकते हो। ओके, नेक्स्ट, Which of the following ecological pyramid is always upright? Remember, always upright जो है वो है एनर्जी वाला पिरामिड, क्योंकि एनर्जी वाला पिरामिड में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल का ही बात है। सनलाइट से प्लांट ने जो ट्रैप किया उससे हार्बीवोरस में जाएगा, फिर कार्निवोरस में जाएगा, ऐसे करते करते ये चीज होने वाला है, ठीक है। तो इट विल बी ऑलवेज अपराइट, मतलब
नीचे ज्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। नंबर में उल्टा पुल्टा हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। बायोमास समुद्र में तो इन्वर्टेड होता ही है। सो आई विल गो विद पिरामिड ऑफ एनर्जी। दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन मेडिकल एंट्रेंस, so this could be a potential question in your exam as well. The pioneer species in primary succession on a bare rock, bare rock में जो सबसे पहले आता है वो आता है अपना लाइकन। देखो मॉस भी पायनियर स्पीशीज में से ही है, लेकिन मैं लाइकन को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। हालांकि ये दोनों सबसे पहले आएगा, खाली जमीन में पहले ये दोनों आएगा। द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी, क्या बोलेंगे फाइनल स्टेबल कम्युनिटी को? लास्ट में जो आता है, मूवी के लास्ट को क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोला जाएगा। पायनियर मतलब जो पहले आएगा, ठीक है, और सेरल बीच वाले हैं। लास्ट वाले को हम लोग बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ऐसे याद रखो, मूवी के लास्ट सीन को क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स बोलते हैं। नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस नेचुरली कहां मिलता है? पत्थरों में, रॉक्स। Ecological succession taking place in an area where all vegetative existing vegetation was destroyed. सब कुछ destroy अगर हो चुका है, वापस से रीस्टार्ट करना है तो वो होगा सेकेंडरी सक्सेशन। मतलब पहले था फिर वो खत्म हो गया, वापस से तो सेकेंडरी सक्सेशन बोला जाएगा, ठीक है। कोई ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से खत्म हो गया हो। प्राइमरी मतलब जहां पे पहले कुछ नहीं था, नेचुरली ही वहां पे पहली बार शुरू हुआ। नेक्स्ट, द वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रिजर्पिन इन रोल्फिया। ये तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन आ गया। तो एक पर्टिकुलर देखो, एक पर्टिकुलर तुम्हारा स्पीशीज का नाम लिया गया है जिसका नाम है रोल्फिया वोमिटोरिया, और उसमें एक पर्टिकुलर केमिकल के कंसंट्रेशन के बारे में बोला है, ठीक है। और ये बोला गया है कि उस स्पीशीज में अलग अलग कंसंट्रेशन मिलता है अलग अलग रोल्फिया में। तो ये बेसिकली जेनेटिक लेवल का डाइवर्सिटी हो गया, ठीक है, जेनेटिक लेवल का डाइवर्सिटी हो गया। वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्ट, क्योंकि वो जो केमिकल बन रहा है अल्टीमेटली वो केमिकल बन कैसे रहा होगा? डीएनए से, आरएनए, मतलब उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी होगा ना सब कुछ, तो उसके वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल है। हालांकि तुमने अगर एनसीईआरटी बिना समझ के रटा भी है तो भी तुम इसका आंसर कर सकते हो। ये वाला भी बहुत फेमस ग्राफ है। Which among the following propose the species area relationship? चार्ल्स डार्विन नहीं, पॉल एवरेज नहीं, रॉबर्ट बेनी, ये वाला बंदा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ओके, याद रखियो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सट्रीम, देखो चारों ही कॉज है, एक्चुअली चारों ही कॉज है। ये चार को इविल क्वार्टेट बोलते हैं, चार बड़े बड़े शैतान जिसके वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज, हैबिटेट, चारों का चारों है। को एक्सटिंक्शन ये भी है, लेकिन सबसे बड़ा शैतान कौन है? सबसे बड़ा शैतान सी है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ओके, दिस इज ऑल्सो अ फेमस PYQ। स्पीशीज कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, क्या बोलते हैं इसको? अगर किसी एक जगह में मिलता है, जैसे अपना काजीरंगा में राइनो मिलता है, एनाकाकामी को एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक माने दे आर कन्फाइंड टू, दिस इज ऑल्सो अ PYQ। कितना सारा PYQs मैंने डाला है तुम इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत सारा डाला है। फिर ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ex situ मोड ऑफ कंजर्वेशन। ex situ मोड ऑफ कंजर्वेशन, ex situ का मतलब क्या है? कि इंसान खुद कर रहा है भाई, नेचर में अगर खुद ब खुद कंजर्व हो रहा है, एक फॉरेस्ट ऑलरेडी है और इंसान ने बाहर बाउंड्री लगा दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दिया, रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह, तो वो इन सिटू है। एक्स सिटू मतलब तुम कहीं से चीजों को ला रहे हो और फिर उसको प्रिजर्व कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, सॉरी। नेशनल पार्क्स, काजीरंगा वगैरह वो फॉरेस्ट लैंड ही है। बायोस्फीयर रिजर्व भी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब नेचुरल फॉरेस्ट है। बस इंसानों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दे दिया। और लास्ट में सीड बैंक, हाँ ये सीड बैंक एक्स सिटू है। देखो सीड बैंक एक्स सिटू क्यों है? क्योंकि तुम खुद का सीड बैंक बना सकते हो और वहां पे तुम सीड को कंजर्व कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सिटू मेथड? इन सिटू मेथड के बारे में पूछा है। अब इन सिटू मैंने समझा दिया है क्या है, अभी मैंने बोला। बॉटनिकल गार्डन कोई कॉलेज वगैरह में भी बन सकता है। जूलॉजिकल पार्क गुवाहाटी में जो बना हुआ है, इंसानों ने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है। क्रायो प्रिजर्वेशन जो मैंने बोला ठंडा में प्रिजर्व करना। नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क ऑलरेडी है, फॉरेस्ट टू आसिल, गौरबुर ऑलरेडी आसिल, एते आमी जस्ट की কৰি আছো, গভর্নমেন্টে কি কৰি আছে, প্রিজার্ভ কৰি আছে। বহুত ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন। লাংস অফ দ্য প্ল্যানেট কাক বুলি কয়? অ্যামাজন রেইন ফরেস্ট, ঠিক আছে।
बहुत बड़े बड़े ट्रीज है वहां पे, बहुत बड़ा सप्लायर है ऑक्सीजन का, ठीक है, इसलिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बोला क्या जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ। ओके, अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये वाले क्वेश्चंस, ये एक्चुअली थोड़ा सा डिलीटेड चैप्टर से भी क्वेश्चंस मैंने डाला है यहाँ पे, ये वाला नहीं, आगे जो है वो है। अब कुछ क्वेश्चंस लास्ट के तरफ, মানে তোমাৰ যোনটো এনवायरमेंटल ইস্যুজ নামৰ যোনটো চেপ্টাৰ আছিল হেতু এতিয়া কারেন্ট এনসিআরটিত নাই, বাট তোমালোকৰ এক্সামত একো ঠিক নাই ভাই, এইবিলাক খুদি দিব পাৰে। তোমালোকৰ এক্সামিনাৰে যদি পুৰণা এনসিআরটি ইউজ কৰি কোৱেশ্চন পেপাৰ বনাই তুমি একো কমপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিবা। দেখিছাই কিমান বেছি কি কি কৰিছে, স্পেশালি এইউৰ ষ্টুডেন্ট কিটা ভালকে জানে কি ইউ ক্যানট ট্ৰাষ্ট দিস পিপল, ৰাইট। এনটিএৰ নিচিনা বডিয়ে ইমান ভুল কৰি দিয়ে, তো সেইকাৰণে মই ৰিস্ক নলবা কাৰণে 10টা মান কোৱেশ্চন এটো আছে, তো মই এইখিনি কৰাই দিছো, তোমালোকে ইমানখিনি কৰি এটলিষ্ট যাবাগৈ, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन, द हिस्टोरिक अर्थ समिट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये कहां हुआ था, ब्राजील में, रियो डी जेनेरो, ठीक है। 191, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव लेवल, बहुत आसान है, देखो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, इंक्रीज को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाई, तो नाम है बायो मैग्निफिकेशन। बाकी ऑप्शन नासा खुना एकदम एक एक वाले कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। बायो मैग्नीफाई, बड़ा होना, जैसे कि मैं ये बोलना चाहता, समुद्र में किसी मछली ने किसी टॉक्सिक चीज को खाया, अब उस मछली को अगर बर्ड खाएगा ना तो उसमें टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 192, नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक, क्या बोला जाता है, नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक के लिए एक टर्म यूज है, ये रहा, यूट्रोफिकेशन, डायरेक्ट मोनोट्रोफिक, स्ट्रेटिफिकेशन तो मैं बुझा लेती है। ओके, नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर, एला वाला एनवायरमेंटल इश्यूज आही गल, हाँ, the thickness of the ozone layer in a column of air is measured in Dobson unit, ये डेसिबल साउंड का होता है, पार्ट्स पर मिलियन तो कंसंट्रेशन का है, सेंटीमीटर लेंथ का है। नेक्स्ट, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए साइन किया गया, ताकि हम लोग ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ये ओजोन पे ही चर्चा हुआ था, तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, वो सब का नियंत्रण किया जाए। 195, क्या बोला है, हाई बायोलॉजिकल, ये मैंने पहले भी बोला था, बीओडी हाई होने का मतलब, बीओडी ये माइक्रोब्स में भी एक क्वेश्चन डाला था मैंने, बीओडी हाई होने का मतलब है कि पानी में हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है, ठीक है, हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है। Which of the following is the most abundant greenhouse gas, सबसे ज्यादा abundant greenhouse gas जो कि ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाईएस्ट अमाउंट अगर बोलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका है। एल्गल ब्लूम्स इन लेक आर प्राइमरीली कॉज्ड बाय, एल्गल ब्लूम्स कौन कॉज करता है, किसके वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिशेस, नहीं, मछलियों से कोई लेना देना नहीं है। एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर, यस, लैक ऑफ सनलाइट इज नॉट द रीजन, एक्सेसिव डिसॉल्व ऑक्सीजन इज नॉट द, एक्सेसिव डिसॉल्व ऑक्सीजन तो अच्छा ही है एक तरीके से, तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पानी में होना, स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक वाला, ठीक है, तो उसके कारण से एल्गल ब्लूम्स होता है। 198, जॉइंट फॉरेस्ट का बारे में पूछा है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 80s का बात है, 80s, ये तो रट्टा मारना पड़ेगा, उपाय नहीं है, मुझे भी याद है, तुमको भी याद रखना पड़ेगा। स्लैश एंड बर्न कल्चर, ये बहुत खराब है अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, पता है ना, सोयाबीन का जो खेती वेती कर देता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली बोलते हैं जूम कल्टीवेशन, कहा गया, ये रहा जूम कल्टीवेशन, ठीक है, कैटल्स को रेस करने के लिए ये सब करता है। Which type of UV radiation is completely absorbed by the Earth's atmosphere? तो देखो मैं बताना चाहता हूं UVB और UVC दोनों ही खतरनाक है। UVC बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा, इसलिए जो अपना अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो इसको पूरा का पूरा जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, पूरा का पूरा इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और नेचर हमको प्रोटेक्ट भी करता है बहुत तरीके से। सो यात आमार बायोलॉजीर दुखटा हाइल्ड क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँ, तारपर मैं भाबू और मैं जानू जे बहुत गिटा क्वेश्चन आइदर सेम टू सेम থাকিব, और मैं जिखिनि बस्तु एक्सप्लेन करिছো न किछुमान बेलेग ऑप्शनत गई पेलेও কৈছো किछुमान कथा, সেইখিনি বস্তু যদি তোমালোকে ভালকে শুনিছা, 5টা সেশন যদি ভালকে চাইছা, দেন তোমার প্রবলেম হব নালাগে। সেকেন্ড থিং, নেক্সট আমি কি করিম, নেক্সট আমি